Good afternoon, everyone. Again, welcome to the class. Here is a question on integers based on operations. Yeah, like here A triangle B is defined as this way. Now, if I give the value 3 star minus 2, all of you just tell me the value here. 3 triangle minus 2. So what we have to do in this question, right? You now gave. Just find the value of 3 triangle minus 2. Instead of A, you write 3 there. So 3 multiply minus 2 multiply by 3 multiply by minus 2 plus B. Jayant Bala is present. Yes, sir. Are you getting it now? Yes, sir. Very good. Tell me the answer first. Sir, minus 2. What? Final answer. Yes, sir. How? First term, first product तो आएगा -6. Fine. Minus The 6. next one will come in plus because there are two negative. So minus into minus it is plus. How much? 12. Now again 4 negative, so it will be also in plus. 2 times 4, 4 3 times 12, 12 2 times 24. Last one is also positive. Answer will be, anybody who told in the chat box? किसने लिखा आंसर अभी नहीं? जय हिंद 36 किसका आ गया? आयुष is the first one. 34. Yeah, I'm not able to understand this. What not understood? Please tell me. क्या परेशानी है इसमें? We just have to put the values, है ना? Instead of A we have to write 3 and instead of B we have to write -2. Yes, ये हमने लिख दिया and then we just put AB. What is A, B, then B and again B. So we just So solve why it. we have to multiply this multiple times? This not written we have to multiply this. Because the operation is given like this. ये उसका definition है, इस तरह से हमको दिया है तो हमें वही करना है. Okay, sir. Sir, I have a doubt. हाँ जी. Yeah, speak. Sir, I have a doubt in ratio lesson. Very good. Tell the question. If Who is A this? is to B, हाँ, sir, I can tell. Yes. If A into B is equals to 5 is to 6 and B is to C is equals to 8 is to 9,
find the value of A is to B is to C. What is A is to B? 5 is to 9, 6. 5 is to 6. And B is to C? Is to 9. Huh? 8 is to 9. 8 by 9. 8 is to 9. Fine. So who will help us? Nirmay, you can see there are two B beta. B दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ. So can we make them same? What is the values of B? 6 and 8. So how we can make two numbers same? Through LCM. Very good. What is the LCM of 6 and 8? 12. Not 12. 8 one time, 8 two times, 16, 8 three times, 24. 24. 24. 24. So 5 और 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? Okay. Yes, And sir. 8 by 9. 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3. Yeah. So what is the ratio? I can see that B is same. B वहां पर क्या है? Same. Sir, देखो 20 is to 24 is to 27. इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को. सो रेशियो हो गया. 27. ठीक है. Yes, sir. Sir, I'm having doubt. हम्म. Sir, if sir, in Aisha, just a simple, minute. yes, sir. सेम महालक्ष्मी. ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. सभी को ये चीज समझ में आई? आप एलसीएम लेकर के अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम कर देते हैं. Sir. Yes, sir. Sir, if principal is given and rate is given, but time is not given, duration, so how we will find? We will put principal into rate into x or something else is the formula. Yes. Principal into rate into x. Okay. Okay, sir. Find SI. Everyone find SI, simple interest, for 184 rupees for 2 years at the rate of 5%. Seven students who are there. Let me see. Mrunal, what is the formula of simple interest, Mrunal? पीयूष जी आज हमारे यहाँ बिहार से ज्वाइन किए हैं. कस्तूरी, कॉलोनी से मैक्सिमम अटेंडेंस रहती है. दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट कॉलोनी स्टूडेंट्स. देखिए नारायण, केतकी, हाँ आर्यन, So I got the यशस्वी. answer. 20 and 21. 20 and 21.
एनीबडी वांट टू आस्क व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? किसी को अगर नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। जितना पैसा हम किसी से लेते हैं या फिर हम बैंक में जमा करते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्याज दर पे होता है जिसे रेट कहते हैं। 5% का मतलब आप सभी को पता है, इट मीन्स 5 रुपीज ऑन एवरी 100। हर 100 पे 5 रुपए एक्स्ट्रा है और ये 2 साल के लिए है, तो 184 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर दीजिए। Sir, can I say the answer? यस, So the answer is 18.4. वेरी गुड, 18.4 रुपीज। सर हाँ जी, सर यस जय। जय, Yes, sir. The answer is 18.4. व्हाट इज द अमाउंट निर्मयी? Ayushi is also here, I think. Ayush is here, but Ayushi is also here. Good. Two zero 2.4. Amount is 202.4. Rupees 202.4. अच्छा, symmetry, all of you revise it, okay? Revise symmetry properly. बेसिक्स पढ़ें और बेसिक्स पढ़ाएं अपने फ्रेंड्स को भी। अगर कॉस्ट प्राइस आपके पास है और आपको एक गेन हुआ है 15% का, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड गेन। गेन कितने रुपए का हुआ है ये बताइए। 15% निकालिए फटाफट से। फाइंड 15% ऑफ, हाँ वो स्पीकिंग। Sir, me, Bhavya. ओके, 15% of CP. yeah, 15% of, fine. LIC is not here today, na? अदम्य द्विवेदी,
may I Narayan tell? Pandey. Shardul Bhatkar. Yes, sir. I got the answer. No, you tell me how many of your friends you talk. To nobody ना, किसी से भी बात नहीं किया ना शार्दुल आपने? No, sir. So this is not a good thing. I am requesting you from the very beginning. So शार्दुल आप ना at least अपने 4 स्टूडेंट से बात करिएगा, ठीक है? Okay, sir. हाँ, हमसे पूछिएगा सिंपल ऐसा कि अगर रेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, what is the formula of simple interest, इससे बेसिक क्वेश्चंस पूछना है. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अब यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं. अब आप 30 अगर 3 स्टूडेंट से भी बात करोगे तो भी 90 हो जाएगा, है ना? और हमारे पास नियरली 80 स्टूडेंट्स हैं. तो दोज हु आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, अपने ऐसे फ्रेंड से सभी बात करिए प्लीज. Sir, I didn't understand this. हाँ, शार्दुल इज टेलिंग. यस शार्दुल. Sir, first we have to find 15% of 20.25. So 15 by 100 into 20 by 20.25 will be 3.03 rupees. अच्छा, वेट अ मिनट. निर्मय, Yes, sir. what is given to us? CP. CP means cost price. Yes. CP means cost price. Suppose this pen. Price. हाँ, अगर ये पेन को जो कंपनी क्रिएट करती है, सपोज उनको उसका कॉस्ट कितना आया, 20.25 आया. नाउ दे गेट अ गेन, उनको गेन भी मिल गया 15% का. तो आपको निर्मय ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना बेटा कि क्या करते हैं हम. जैसे अगर सपोज 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है ना, उस पे आपको अगर प्रॉफिट हो गया 5% का, तो आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, 5% ऑफ 100. व्हाट इज 5% ऑफ 100 निर्मयी? बांटेंगे ना हाफ केजी के पैकेट 3.5 में. 5% ऑफ 100. 5%. हाँ जी, 100 का 5% कितना होता है? 5/100 मल्टीप्लाई बाय 100. Sir, 5% only. 5 रुपीज. ओके, 5 रुपीज है ना. मतलब हम परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम उस परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे. जैसे यहाँ शार्दुल कह रहे हैं कि 15% निकालेंगे हम इसका 20.25. ओके, अभी कितना आएगा 20.25 का 15%? सो व्हाट आई शुड डू, ये हटा दिया मैंने और 2 जीरो आ गए. 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं. 15 into 5 75. 15 2 times 30 7 3 0 10 0 3. 15 2 times 30. 30. Now I have 4 zeros. Yeah, तो 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगाता हूं. 1 2 3 4. So it will be 3.03. फाइन, बाकी को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें वी आर टॉकिंग अबाउट रुपीज एंड पैसा. तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 20.25, इसमें हम जो प्रॉफिट हुआ है 3.03.
This is the cost price, selling price. Sir, Okay. doubt. Just think and ask. Okay. महालक्ष्मी पहले एक बार सोचो क्या डाउट है. Sir, if we Speak. Sir, if the denominator is in decimal, then we will multiply by 100 or 10. So why we are multiplying right now? We have to only multiply, we are not dividing. There are 4 zeros in denominator which we have to remove. So fraction को किसमें convert करोगे? Decimal में करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. फिर तो ऐसी बातें करते बेटा आप लोग थोड़ा सोच के. मैं आपसे यही कहता हूँ ना, just think and speak. Mrinal, what is the formula of SP? Mrinal, SP is equals to CP plus profit. जितना कॉस्ट उस आर्टिकल का है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसमें हमें प्रॉफिट ऐड करना होगा. हाँ जी. Sir, for CP we have to do same, but we have to minus. नो सीपी में तो आपको याद है ना जयंत. व्हाट यू डू, यू फॉरगॉट इट. हाँ, वो कल भी तो अदम्या ने बात किया था ना प्रोपोर्शन वाला. सपोज एसपी है 20 और लॉस है 13% का, तो सीपी कैसे बताओगे आप? जल्दी बताओ. सीपी सीपी पूछ रहे हैं आपसे. हाँ जी, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं. सीपी आपसे पूछा है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज और लॉस है 13% का. चलो फटाफट बता दे. सर 2.6. कैसे 2.6 क्या होगा बेटा? 2.6 कैसे होगा? 2 रुपए की चीज है क्या? सर चलो 13/100 into 20. नहीं, ये जो मेथड हम करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस ले सर लेते हैं we should 100. minus 20 minus 2.6. ओके, 20 minus 2.6, वेरी गुड. सो 13 माइनस कर दो 87. रम्या जी तो आज है नहीं, उनको याद होगा कल बताया था उन्होंने कि 120 पे, सॉरी 20 पे कितना होगा यदि 100 पे 87 है. ये हमने कल भी देखा था, करना पड़ेगा, है ना? आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेम्बर्ड इट. चलिए, ईशान एंड जानवी वर हैविंग सम क्वेश्चन फ्रॉम. तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू सीपी अपॉन एसपी. सीपी हम मानते हैं, सपोज इट इज 100 रुपीज. अगर 100 रुपए का सीपी है तो लॉस हुआ था 13 रुपीज का. 13 का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई थी? 87. तो ये सीपी अपॉन एसपी का एक रेशो आया, और जब दो रेशो को इक्वल करते हो तो प्रोपोर्शन बनता है. यहाँ पे आप लिख रहे हो सीपी अपॉन 20. May I answer? यस. Sir, 22.98. 22.98. चलिए,
Yes. Anyone who did this? Bhavya, Ayushi, Ayush, anyone? Sir, may I So tell? the formula of SP is CP into profit or plus profit. ना प्लस प्रॉफिट। देखो सिंपल सी बात क्या है, हमको जब प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस करते हैं कॉस्ट प्राइस में, है ना। ये तो हमको सीपी में प्रॉफिट को क्या करना है, प्लस प्लस करना है, और लॉस को क्या करना है, माइनस। माइनस करना है। पर हमको क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं दिया होता निर्मयी, प्रॉफिट का परसेंट दिया होता है। क्या दिया होता है प्रॉफिट का परसेंट। ओके, तो जब प्रॉफिट परसेंट देके रखेंगे या लॉस परसेंट देके रखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले उस प्रॉफिट परसेंट को सीपी पे फाइंड करेंगे। जैसे भी हमने किया था 15% ऑफ 20 पॉइंट जो क्या था वो, ठीक है, फाइन निर्मयी। तो पहले प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे सीपी का जो कि प्रॉफिट होगा, और फिर उसको हम सीपी में ऐड कर देते हैं। तो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। Sir, may I tell this question? हाँ, या स्टार्ट। Sir, 7.2 minus 2.46. Okay, wait a minute. हाँ, अच्छा एक मिनट, अभी ये एक स्टेप मैंने आप सबके लिए लिख दी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप सभी को पता है ऑलरेडी क्लास 6 से, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ध्यान रखना है बोथ आर नेगेटिव, तो लास्ट वाला जो है वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा, पर ये जो कोविड पीरियड अभी चल रहा है, इसमें हमारे अंदर कितनी सारी मतलब जो कुछ कह सकते हैं बैड हैबिट्स आ गई हैं, ठीक है ना। तो एक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपके अंदर ना एक कंपटीशन वाला जो फील है, क्या हो रहा है, पेपर आप सब लिख रहे हैं। जो लोग ऑनेस्टली अपना पेपर देते हैं, मुझे भी समझ में आता है जब मैं आपका पेपर चेक करता हूँ, हर बार मैं आपसे कहता हूँ, है ना। तो आप जब ऑनेस्टली लिख रहे हैं तो आप खुद को तो चेक करिए कि मैं कहां पर हूं। जैसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट की हम सब बात कर रहे हैं अभी, तो हमें फील होना चाहिए कि यार मुझे आता है कि नहीं आता है ना। मैक्सिमम हमारे डिस्कशन ऐसे होते हैं कि मैं आपसे ही क्वेश्चन आंसर पूछता हूं, तो आप सब बाकी सबको मोटिवेट होना चाहिए कि वेदर आई एम गेटिंग इट और नॉट, मैं मुझे आएगा कि नहीं। कल से जब स्कूल ओपन हो जाएगा, अभी 8th में 9th में सेम टॉपिक फिर से आएंगे। सो इतना सिंसियरिटी थोड़ा सा जो है ना। यस ईशान, कंटिन्यू। Sir, 7.2 will come, then minus हाँ, 2.46, या 1.2x plus 1.8 is equals to 0. वेरी गुड। 9 point, sir, 9. ये देखिए दोनों, बताओ ईशान, सबको बताओ क्या कर रहे हो आप, व्हाट यू आर डूइंग। Now I will add them both. हाँ, 7.2 and 1.8, how much? 9.0. Fine. Then variable. Sir, I will do this both minus. Sorry, plus हाँ, plus हाँ, 3.6x. yeah. Next step. Sir, then x is equals to no. Okay. So minus will become plus and then multiply become divide. तो 9 को हम डिवाइड कर देंगे by 3.6. Fine. So हो जाएगा 90 divided by 36. What will be the lowest form of
90 by 36 45 by 18. और भी लोएस्ट फॉर्म होगा ना. By 9 only we should divide. So it will be 10 3 by 5. 3 by 5. 3 by 5. Sir, it will be 5 by 2. 5 by 2. The answer is x is equals to 2.5. Yeah, correct. ये हो गया 2.5. 5. 5 मिनट है. Seventeenth question. तो ये सिंपल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन है जहां पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, फिर अगर चार आपके पास टर्म्स आ गई तो आपको पता है कि नंबर और नंबर को ऐड करना है, वेरिएबल वेरिएबल को ऐड करना है, फिर सब सिंपल है. पर ये प्रैक्टिस के बिना नहीं होता. मुझे पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा. यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. The question which is Shardul is asking, it is a very simple one. Shardul, you please tell me. Look here, one of the angle is 45 degree here. Now, what will be the value of this A? बताओ जल्दी. Shardul. 45 degree. A 45 degree. Why? What is the reason? Corresponding angles. Very good. They are corresponding. तो रीजन सभी को लिखना है. बिना रीजन के अगर आप सबमिट कर देंगे मैं आपके आंसर शीट में 0 मार्क्स कर दूंगा. ओके. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट द रीजन इन पैरेलल लाइंस, लाइंस एंड एंगल्स. फाइन. द नेक्स्ट वन इज here angle, this angle is of 55 degree and this is B. So letter Z बन रहा है. What is letter Z? Alternate. Very good. Letter Z is, हमें ये पता है कि F जो है वो हमारा करस्पॉन्डिंग होता है ना. लेटर F बनता है करस्पॉन्डिंग में and letter Z is for alternate. So B is equals to 55 by alternate angles. Question number 21. Who will answer? Janvi. Janvi. Yes, sir. What is the value of X? X and 125. How they are related? They are on a straight line. Very good. On a straight line तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180. Very good. What is X X? equal to 180 minus 125 is 55. X is 55. Okay. Now what do you think about X and Z? X और Z किस तरह के एंगल है? X और Z. Co-interior. Very good. Co-interior. Parallel lines में केवल 3 प्रॉपर्टी है. First is corresponding, second is alternate, third is co-interior. F, Z, U है ना. F होता है हमारा. अच्छा Z जो है वो 125 का क्या है? ये 125 और Z Corresponding. Corresponding. समझ में आना चाहिए कि लेटर F हो गया, अगर ये लेटर F हो गया ऐसा है ना. F हो गया कि नहीं यहाँ पर? ये दिस इज F.
सो दे आर करस्पॉन्डिंग। तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। x is 125 बाय करस्पॉन्डिंग। अब y कैसे फाइंड करेंगे? y और x और y भी ऐसे Sir, निकाल X दीजिए। is 55. हाँ, हाउ? ठीक है, चलो फिर कल बात करते हैं हम इस पे। और z की वैल्यू आ गई हमारी 125 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। Thank you, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. Thank you, sir.